the today's webinar of the WoW series, which is today we are having this webinar on 5 years of GST and the issues relating to it. We have with us the privilege of Mr. Atul Mehrotra ji, the CIRC chairman himself. He's here with us. The session chairperson, Reena Bhargav ji from Lucknow, a learned speaker, Shaurya ji from Agra, and Tanvi and other participants. I think I won't be able to name all the participants. We are a huge number of 90 people now. So in order to start the session, I first hand over the mic and the dais to Atul Mehrotra ji to say a few words about this WoW series and the various activities of CIRC. Thank you, Chavi. Very respected Reena Bhargav ji and Chavi ji from my own city, Kanpur, Shaurya from Agra, Tanvi from Gwalior, my seniors in the profession, friends, boys and girls. Very good afternoon to all of you. We just started this WoW series, Women on Wednesday, last year. But during this tenure of my chairmanship, we just started in the month of May itself. So the purpose of this WoW series is that to promote our female members either as a speaker or either as a session chairman or in any other role, whatever they are willing to contribute for our members and for the profession. So in this series, this is our second program, and we are also have planned for the 15th as well. And you all are requested and circulate this message to your colleagues and friends who are interested in any way to contribute for our fraternity, for our CIRC members or from members at large from our entire country. Then please call me or mail at CIRC@ICI.in. Whatever your contribution will be offered from your side, we will honor that, and accordingly we will plan. So before coming on the topic, I am thankful to Reena ji, Shaurya as well, because everybody is having her own schedule. Out of that busy schedule, you people are contributing for our fraternity. That is the dedication and commitment towards our profession. So 2-3 small things I just wanted to come to the knowledge of our members, that we have already started a MSME help desk from CIRC, and we have hired a professional. Our members who are engaged or providing consultation or services to the MSME sector, if they are having any query, then they are requested to forward their queries to us, and those queries will be answered by our professional person, and we will be coming back with the answers with you. And as we know that World Congress of Accountants, a very mega event is being organized at Mumbai from 18th to 21st November. Though it is in hybrid mode, physical as well as virtual, but my personal opinion or suggestion or request is that it will be a big picture of our future profession, when we will be with a lot of learned persons, successful persons from different countries with us. Then it may be a eye-opener or a new avenues we may be able to know what is going to be happen in next 10 to 15 years in our profession. So virtual is good enough, but please try to attend physically. And there is a early bird scheme for registration as well till the date, till 30th June itself. So, and 75th year
is being celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav by our central government, by our state government, even by our ICI as well. So our CIRC also planned 75 दिन 75 प्रोग्राम, ये हमारा टाइटल है और हम लोगों ने इसको 75 दिन तक लगातार जो 2 तारीख से शुरू हो चुका है, रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा, उसमें हर तरह के प्रोग्राम है। तो आप लोग जो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहे, प्लीज feel free to call me or any of our office bearer. Our secretary is there, our CIRC team is there, and we will be very happy to accommodate any program which is beneficial for our members as well as students. So I am thankful once again to all these female members from our family who managed this show, especially Chavi, who is MOC for today's program. And now I request Chavi ji to proceed further. Thank you. Thank you. Thank you so much, Atul sir, for enlightening us for the future programs of CIRC, which are going to be started in next few days. Moving ahead with the session, I first hand over the dais and the mic to the learned and respected session chairman, C. Reena Bhargav ji, for her opening remarks before I introduce the learned speaker. Thank you. Thank you, Shavi. It's really a wonderful thing which has been started by the CIRC. And but I was just going through the participants list. Unfortunately, again, the participation of female members is very less. Either उन्होंने जिससे लॉगिन किया है नाम नहीं बदला है या फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है. So this is one part which is lacking, really lacking, which I would say that more and more females should come forward. बहुत ज़रूरत है. और जब इनिशिएशन हमारे लीडर्स हमारे इनिशिएशन किसी चीज़ का ले रहे हैं तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए. So anyway, now coming to the topic, I will not take much time क्योंकि सभी लोग स्पीकर को सुनना चाहते हैं और स्पीकर ने बहुत मेहनत की होती है तो उसको फुल टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने प्रसंग या जो भी उसने तैयार किया उसको रख सके और बहुत अच्छे से रख सके. And I'm sure that Shreya will be doing, will be delivering in all respects. 5 साल को अगर हम देखें, GST started with the ban. बहुत लेकर के चर्चाएं हुई, but slowly it gave us disappointment. Disappointment in the sense कि जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन लाया गया था और आज जो एक्ट है, it has gone totally. अगर हम कहें ease of business doing, it's gone. अगर हम कहें कि कहीं SSC को बेनिफिट हो रहा है, it's slowly they are making it more beneficial towards the government side. So anyway, we can't, I mean, we are not the policy makers, and the worst part is इसके अंदर जो policy के अंदर problems हैं, जब हम state level पे जाते हैं तो कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते. We are making lot of representation here यहाँ पे, but वो कहते हैं मैम हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है. So challenges are more ahead. 5 साल बीत गए हैं लेकिन challenges हमारे खत्म नहीं हुए हैं. With this remark, I would like to hear Shreya with her deliberations. So, Chavi, over to you. Thank you so much, Reena ma'am. Very well said. There have been a lot of challenges in the GST in past 5 years, and it has become pro-government in last 5 years rather than being pro-SSC. Before I ask our learned speaker Shaurya ji to start her deliberation for today's webinar, I'll quickly introduce her for the rest of the participants. We have 132 people already. So Shaurya Goyal is a chartered accountant and a lawyer by profession. She is a founder of Shaurya Goyal and Associates and a senior partner in ACSG and Associates, having offices in Agra and Noida. She has a great, well known for her meticulousness, organization skills, ability to provide continuous management of financial systems and budgets. She is very versatile personality with a combination of knowledge, curricular and social activities. She has received many awards and certificates, including but not limited to as a speaker at various fora in academics and sports.
She's a result-oriented accounting professional with broad experience in deadline-driven environment. Proven track record in consistently and effectively delivering accounting services that enhance that company's purpose and profitability. She is a highly innovative individual with a keen interest in developing creative case studies and writing effective briefs. Process excellent argument techniques and ideas that help in winning cases. Ladies and gentlemen, I present before you Shaurya ji and hand over the Dyson mic to her. Welcome, Shaurya ji. Thank you so much, Abhi ma'am, for such a beautiful introduction by you. First of all, I would like to thank you, the chairman, Atul sir, our respected learned speaker, I would say, or the senior member, Reena ma'am, and other members relevant for the WoW series, Kishore sir, Lokesh sir, Rajeev sir, Anil sir, Tanvi ji, Chabi ma'am. So thank you all of us. Thank you all of you, and obviously the audience for being present here. And like Reena ma'am, I would also request the women members more to come forward, and the male members who are present here who have their sisters or wives as CAs to promote them. That's all I think I can say in this series, and I really found it so useful. I have been seeing this series, I have been participating in for the past other seminars too. But coming on my topic, the 5 years of GST and the issues, very well said by Reena ma'am. I would like to agree with her views. In the last month only, when Atul sir called me, so I was in a seminar in the Agra branch, so I was a speaker there. So किसी एक जो ऑडियंस थी उसमें से किसी ने क्वेरी ये थी किसी की कि अरे 5 साल हो गए हैं पर अभी तक इतने सारे इश्यूज क्लियर ही नहीं हुए. तो वी वर लाइक, वी ऑल हु वर स्पीकर्स वर लाइक, इनकम टैक्स को कितने साल हो गए, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फॉर अ 5 year GST बेबी कि वो सिर्फ 5 साल में चलना सीख जाए और इसके अलावा दौड़ना सीख जाए. तो ये मैं एक चीज बोलना चाहूंगी हमारे सीए मेंबर्स से, हमारे इनफैक्ट सीए मेंबर्स को, कि वो क्लाइंट को एक बार बोले, जैसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं कई बार कि अरे अभी तक जीएसटी में गवर्नमेंट को ही नहीं पता है क्या करना है तो हम क्या करें, एंड उनकी कोई गलत सोच रही है. आई जस्ट गिव यू एग्जांपल कि गवर्नमेंट को यही जब तक क्लियर नहीं था 2 लाइन 2A लाइन 2B लाइन, और अब नाउ इन द फाइनेंस एक्ट 2022 दे कम अप विद दिस प्रोविजन अंडर 16 कि अब 2B लगता है. तो बेचारे क्लाइंट से या बेचारे सीए मेंबर से हाउ कैन दे एक्सपेक्ट कि क्या करना चाहिए. फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टेक अप इज द हॉट टॉपिक इन द टाउन, द ओशन फ्रेट ऑन सीआईआर. आई जस्ट शेयर माय पीपीटी, तो अगर विजिबल हो तो आप प्लीज एक बार मुझे बताइए. छवि मैम, इज इट विजिबल? Yes, Shaurya, your PPT is visible, your screen is visible. It's visible. Okay. So there we go. So it was for ocean freight. Okay. So first I'll give you a glimpse of what was the situation. Then we'll discuss what has been settled by the court, the Honorable Apex Court. But trust me, this settled law is still unsettled. And that's how I think the rulings and case laws have become in GST, that the settled things have become unsettled so easily. So the issue was, whenever our client who's importing something, so he has become the importer in India, and there is somebody in the foreign country who's exporting goods to that importer in India. So basically that is the sole responsibility of the exporter farm who is exporting goods to India, that he has the responsibility that all the goods must have been received in India. अब वो जो responsibility exporters के कंधे पे है, तो he is not going to do it by himself. That's obvious. तो वो एक foreign shipping line की help लेते हैं, जिसके थ्रू फॉरेन शिपिंग लाइन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो शिप के थ्रू अपना माल पहुंचा रहे हैं इंडिया, वो वैलिडली इंडिया तक पहुंचा इन द टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया, और हम जिसे अपनी जीएसटी की लैंग्वेज में बोलते हैं इन द कस्टम टेरिटरी क्लियरेंस ऑफ इंडिया. सो सिर्फ इतनी एक हेल्प लेना, आई थिंक एक्सपोर्टर का एक फॉरेन शिपिंग लाइन से ये इतना ड्रैकोनियन हो गया कि जो इम्पोर्टर इंडिया का था वो बेचारा परेशान हो गया, आई वुड से.
अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ऐसे नॉर्मल सी सिचुएशन लगेगी कि इसमें है ही क्या, एक एक्सपोर्टर है और एक बाहर से शिपिंग लाइन है, उन लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, तो व्हाई वुड आई पे दैट? But trust me, that have been done since July 2017 until this moment. So what was the issue? I'll just discuss a law first. So there was a notification, RCM notification 10/2017. तो कभी भी कोई भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं तो हम कस्टम एक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, उसके बहुत पोर्शंस होते हैं, हम ईसीडी सीवीडी वगैरह पे करते हैं. सो बेसिकली दैट वेट पोर्शन दैट वी वर पेइंग अर्लियर, द जीएसटी regime, now it has been converted into the GST, IGST. So by paying the duty, custom duty, we have already discharged our IGST payment. But in addition to that, there is a notification in GST law which says अगर आपने कोई भी सर्विसेज ली है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू द customs station of India, then the importer has to pay the tax. So I would like to focus upon this thing. Supplier of service, column number 3, that the person should be located in the non-taxable territory and the recipient should be the importer. Number one thing, ये इतना प्यारा केस लॉ है, आई वुड से मैंने जितने भी केस लॉस पढ़े हैं तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट केस लॉ, जिसमें लास्ट बॉल तक एसएससी हार रहा था और लास्ट बॉल में उन्होंने 6 मार के पूरा केस अपने फेवर में कर लिया. सो द एसएससी पुट अ वैलिड रीजन कि जो नोटिफिकेशन करता है, सो दैट ड्रॉन इट्स पावर फ्रॉम सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 which has the power to only specify the category of service on which RCM has to be discharged. The category of service तो आप बता सकते हैं, but आप रेसिपिएंट नहीं बता सकते. तो आपने रेसिपिएंट इंपोर्टर बताया, यही गलत है जिसपे आप लगा रहे हैं. तो इस पे डिपार्टमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर हमने गलत रेफरेंस दे दिया दैट डजंट मेक अल्ट्रा वायरस नोटिफिकेशन. आप 5.4 पढ़ो, 5.4 में तो है ये वाली बात कि हम रेसिपिएंट बता सकते हैं. ठीक है, वो वाला भी बॉल आउट हो गया. देन नेक्स्ट जो बताया एसएससी ने, वो बोला कि अगर हम रेसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ें, दैट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 93, उसमें रेसिपिएंट बताते हैं कि इफ देयर इज अ कंसीडरेशन इन्वॉल्व, तो जिसने कंसीडरेशन पे किया है तो वही आपका रेसिपिएंट हो गया. अब इस केस में फॉरेन शिपिंग लाइन एंड एक्सपोर्टर के केस में जो कंसीडरेशन पे करने वाले वो एक्सपोर्टर है, बिकॉज द गुड्स हैड बीन एक्सपोर्टेड ऑन सीआईएफ बेसिस which includes cost, insurance and freight. So ultimately that freight portion was first borne by the exporter. So the consideration had been paid by the exporter. So ultimately इस केस में तो recipient exporter हुआ ना. So why are you levying RCM notification on the importer which is located in taxable territory? तो गवर्नमेंट ने बोला कि अरे आप उसमें रेसिपिएंट की डेफिनेशन है, फर्स्ट क्लॉज पढ़ो, सेकंड तो पढ़ो कि जब कंसीडरेशन नहीं होता तो जहाँ डिलीवरी हो जाते हैं गुड्स के वो मान लिए जाते हैं रेसिपिएंट. तो इस केस में डिलीवरी हुई है इंपोर्टर में, तो इसको हम रेसिपिएंट मानेंगे. यहाँ पे नॉकडाउन हो गया एसएससी. फिर उसने थर्ड पॉइंट उठाया कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई देखिए, जब दोनों ही लोग एक्सपोर्टर और फॉरेन शिपिंग लाइन ये दोनों ही लोग बाहर के हैं, तो हाउ कैन यू लेवी एनी टैक्स? प्लेस ऑफ सप्लाई तो या तो यही बताता है एक इंडिया में, एक इंडिया से बाहर है, कोई ऐसा है नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ दोनों बाहर है. So how can you levy then? And when there is no place of supply, how can you levy the tax? Because place of supply that we call POS in our office, in time of supply, in the valuation and supply की definition, ये 4 चीजें होनी चाहिए आपको अगर जीएसटी लगाना है. यदि प्लेस ऑफ सप्लाई से ही बाहर है तो आप कैसे लगा सकते हैं? इस पे डिपार्टमेंट ने बोला कि जब ऐसा केस होता है तो जहाँ डिलीवरी हो जाती है गुड्स की वो ही मान ली जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई. तो इन दैट केस इंपोर्टर, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स had been done in India, the importer case में हो जाएगा आपका recipient, तो place of supply दिया. So all those balls were knocked down by the department. But the last point that was raised by the SEC was really fabulous. So he said, ये double taxation तो है, हम custom में भी पे करते रह रहे हैं और हम RCM notification के थ्रू भी कर रहे हैं. तो जो day one मोदी जी ने कहा था या जो day one ministers ने कहा था कि there will be no double taxation. So GST is not goods and services tax, it is good and simple tax. जो day one का है, तो how is it simple जब आप double taxation लगा रहे हैं? Then what was the purpose of GST? ये तो VAT में भी हो रहा था, ये तो पुरानी regime में भी हो रहा था. So the government said
कि ये वाली बात बिल्कुल सही आपकी, दे कैन नॉट बी डबल टैक्सेशन बट प्लस. सो द नेचर इज बेसिकली द कंपोजिट सप्लाई. सो व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई हम सबको ही पता है, जो भी नेचुरली बन गया. सो बेसिकली द वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, दिस कैन नॉट बी आर्टिफिशियली वाइविसेक्टेड. अगर आप आर्टिफिशियली वाइविसेक्ट करोगे हर चीज को, देन देयर विल नॉट बी अ सॉलो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कोई अस्तित्व भी नहीं है. तो हर चीज आर्टिफिशियली वाइविसेक्टेड है. सो ऑन दैट बेसिस वो जो सिक्सर हुआ था उसका, वो एसएससी ने किया था और वो बिल्कुल जीत गया. तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी वो ये थी कि अब सीआईएफ पे आरसीएम नहीं लड़ेगा. बट द मेजर इशू इज, यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया. द मेजर इशू इज, उसमें सब लिखते लिखते छुट्टी से लिखा था डिपार्टमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, दे आर नॉट मैंडेटरी. And trust me, it is going to open a Pandora box for litigations now. Because there have been n number of decisions that were pro-revenue, and that were n number of decisions that were in the favor of SSC. Now the department is undoubtedly going to use it. That's the different thing, that we can also use it. Those were pro-revenue, but now it is going to open this litigation. अभी कोई कम लिटिगेशन नहीं है. फील सी लाइक नाउ एंड देन हमारे हर क्लाइंट का आई थिंक हर हफ्ते में एक नोटिस तो आ जाता है. तो वो छोटे छोटे नोटिस भी टू बी में क्या फर्क है या इसमें क्या फर्क है, नाउ इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर क्लाइंट. नाउ द सेकंड थिंग इज, व्हाट अबाउट दोज असेसी, दोज टैक्स अबाइडिंग असेसी, and those who just at the cost of litigation, just to avoid that cost of litigation, they have been paying this throughout. क्या उनको रिफंड मिलेगा जो पहले पे कर चुके? There is no such thing in this rule. But in my view, yes, we can claim and we should claim. So a definite mechanism is still awaited. I personally believe there should be a difficulty removal order that we can, I think, recommend to the higher level. We can represent this to the higher level through our council members. That there should be a difficult removal order. Just have, I don't know if like those who were practicing in service tax, like I practice in service tax and GST. So there was a notification, difficult removal order during the service tax regime. जहाँ पर एक exemption लगाई गई थी retrospective effects. तो उसमें difficult removal tax आप refund claim कर. We are expecting कि हाँ वो बहुत जल्दी आएगा, और अगर नहीं है तो we can at least represent these arguments so that maybe government उस पे आगे action. Next, I would like to discuss the most important aspect that that we might be missing, or if we not, then our client might be missing. So I'll give you a situation like we are three friends and we three friends are going on a road trip. तो अब आदत होती है, you being a chartered accountant, पूरे ग्रुप में तो भले ही किसी भी चीज को खरीदी एक्सपायरी देखना, लेकिन बिल तो जरूर देखते हैं. इतना क्लाइंट की इनवॉइस देख देख के आदत पड़ जाती है. तो वी वेंट टू अ शॉप कि बहुत भूख लग रही है, तो हमें लेस का चिप्स का पैकेट ले लिया. तो हम गए, हम तीनों, हमने लेस का पैकेट लिया. तो आई वाज द वन कि अब दुकानदार है तो थोड़ी टैक्स की बात कर लेते हैं कि भाई हम सी हैं. तो हमने देखा कि बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, कंपोजिट सप्लायर है, सब कुछ है. बात हुई हाँ कैसे पे करते, 1% पे करते हैं, हम किसी से कुछ लेते नहीं, अपनी पॉकेट से करते हैं. ये वाज सो हैप्पी. देन वी बॉट अ लेस का पैकेट एंड वी पेड 20 रुपीस. एंड ट्रस्ट मी, उस 20 रुपीस में जो 2 रुपए का टैक्स लग रहा था, इट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर फॉर ही. डिड नॉट नोटिस दैट those LLP, those after lays ka packet includes 20 rupees, which is ultimately the MRP, and MRP includes all the taxes. If we will see to F of the consumer goods, it is specifically mentioned that maximum retail price means such price at which product is sold in retail, and such price shall include all taxes levied on the product, and that includes GST. And apart from this, the GST Act था तब एक लीगल आपका मेट्रोलॉजी एक्ट में भी FAQ था, जिसमें GST आने के बाद एक इसमें सोल्यूशन बताया गया था, एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था that MRP on prepackaged commodities inclusive of all taxes.
that a consumer has to pay, and that includes GST. तो उसने अनजाने में उस एसएससी ने जीएसटी कलेक्ट कर लिया, which was out of the power of that composition dealer, because he was not eligible to collect tax from customers. He had to pay his from his own pocket. अब उसका registration cancel हो सकता है, उसको notice भी आ सकते हैं 73, 74 में, और बहुत सारे litigation हो सकते हैं, because ultimately he is keeping the money which was meant to be reimbursed to the department, and technically it was not meant to be collected either. So he has infringed the law. तो गवर्नमेंट ने अभी तक इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, but we can at least enlighten our clients, we can at least suggest it to our client कि जो भी composition dealer हैं ऐसे, तो इन चीजों का ध्यान रखें, जो MRP प्रोडक्ट्स हैं उसको MRP में से टैक्स लेस करके फिर दे, because they cannot collect the tax. Next issue that I would like to discuss is the composite and mixed supply. What composite supply is? But short C definition given a composite supply is those supplies, those two modes of both which have been naturally bundled, and mixed supplies which are artificially bundled. So my question to my audience is, are there only two supplies? जब भी हमने दो supplies की हैं साथ में, तो क्या composite और mixed ही होंगे? क्या और कुछ नहीं हो सकता? Can there be any third supply? I expect my audience to answer in the chat box, because let's keep it an interactive section. तो थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा सा वेबिनार में यही है कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता है. So is there any third supply जिसे हम कह सकते हैं कि वो composite भी नहीं है, mixed भी नहीं है, but ये एक तीसरी supply है? Yes, there is. And हम regular में वो supply देख रहे हैं, but हमें पता नहीं है. Composite supply आपको naturally bundled मिले, mixed supply आपको artificially मिले, but वो third supply है जो दो supply आपने साथ में की है, but फिर भी composite और mixed है. आज जब बिग बाजार में आपने एक टूथब्रश उठाया, एक कोई जग उठाया, एक टी शर्ट उठाई, आप बिल काउंटर पे गए, तो दे आर नॉट मेकिंग इट अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई. 18% लगता था फॉर एग्जांपल किसी जग पे जो आपने उठाया था, और वो सब पे 18% नहीं लगा. नोटिस द बिल, वो टी शर्ट पे 18 लगाया, जग पे 28 लगाया, ब्रश पे 5% लगाया सपोज. सो दैट इज द थर्ड सप्लाई. वी कैन कॉल इट अ कॉमन सप्लाई. तो भी एसी के रिपेयर है या एसी इंस्टॉलेशन है, एसी की कॉस्ट अलग है, रिपेयर की अलग है. सो दैट इज द थर्ड सप्लाई. My voice is not clear. Yeah, sure. Yeah, I think your voice is breaking either because of the fan which is being over the air or some network probably. Is it audible now? Yeah, let's start. Probably, let's see. Okay. So shall I repeat for this topic? Yeah, बिल्कुल clear था ये वाला. No, I think we're discussing the third supply, the supply Yeah. from the showrooms and the big. Yeah, right. Okay. तो अभी आप मुझे बताइएगा अगर आवाज नहीं आ रही हो तो. Now the third topic that I would like to discuss is, अगर हमने सपोज कोई भी एसी ऑर्डर किया है, हमने देखा कि यहाँ शोरूम में जाके वो 1 लाख का मिल रहा था और हमें अमेजोन पे वही चीज 80,000 में मिल रही थी, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय इट फ्रॉम द अमेजोन कि हमें 20,000 का कैशबैक मिलने वाला. तो व्हाट वी डिड इज, हमने लॉग इन किया अमेजोन, हमने ऑर्डर लगाया अपना 1 लाख एसी, 1 लाख के एसी का, और हमें 20,000 कैशबैक मिल गया, हमारे यहाँ एसी आ गया. डन, पूरी ट्रांजैक्शन. अब जो एसी आया हमारे पास, उसके जो कैशबैक आया 20,000 का, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दैट 20,000? हमें किस चीज का पैसा आया वो 20,000? इज इट अ सप्लाई? इज इट अंडर जीएसटी? बिकॉज कंसिडरेशन तो हमें रिसीव हुआ है, बट किस चीज का हुआ? I think it is a form of discount which is given to a customer rather than a supply or a consideration. I think if it had been a discount, so it should have been mentioned as a discount in the invoice, or there should be any credit or debit note for the post supply discounts.
but there's nothing like that. कोई भी हमारे पास क्रेडिट डेबिट नोट नहीं आता. I'll give you one more example जिसका आंसर सेम ही है बट सिचुएशन अलग. फॉर एग्जाम्पल आप रेंटल का काम करते हो, आपकी बिल्डिंग है, आपने रेंट पे दे रखे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट सब अग्रीमेंट सब हो रखा है. पहले जो टेनेंट था उससे जाते जाते मिरर टूट गया. आपने बोला कि भी मेरा 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो आप वो मुझे भरपाई कर जाओ. तो वो जो 50,000 रुपये आए, व्हाट इज दैट? So what are these sort of supplies? So I think these sort of supplies are, if you will look into schedule 2, that is agree to made a supply, agree to do an act, not to do an act, or to tolerate an act. That mirror tootna is tolerate an act. That Amazon का cashback आना is to do an act, कि हमने हाँ किया कि हम आप ही से खरीद रहे हैं, हमें cashback आया. वो मिरर टूटा, दैट इज हम टॉलरेट किया, हमने, हमारा अग्रीमेंट था, हमने अग्री किया था. सप्लाई की डेफिनेशन में भी देखेंगे आप तो लिखा है टू अग्री टू डू एनी ऑब्लिगेशन और समथिंग लाइक दैट. सो वी शुड हैव मेड एन इनवॉइस एंड केप्ट इट आवरसेल्फ कि हाँ ये वाली हमारी सप्लाई हुई है. दैट इज अ फूड फॉर थॉट. सो नेक्स्ट थिंग, दिस बोगो ऑफर. थिंक जो गुड्स में डील करते हैं क्लाइंट्स, उनका काफी ये इशू रहता है कि हमने एक चीज के साथ एक फ्री दिया. फॉर एग्जांपल आप किसी आई वुड से स्पाइसेस का काम करते हो, तो आपने एक पैकेट दिया, उसके साथ आपने एक और पैकेट फ्री दे दिया. नॉर्मली चलता है हर एसएसए के केस में. तो दैट फ्री सप्लाई, whether ITC reversal is required, because 17.5 में तो clearly given है free sample gifts, this and that, destroyed. So will it require ITC reversal? I think I'll go with the discussion that had been mentioned, or the clarification that had been mentioned in this circular 92, which was issued in 2019. तो सर्कुलर से एक चीज है, एक तो ये पता चलती है कि क्या लॉ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये पता चलती है कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है. सो व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स बिहाइंड मेकिंग द लॉ. तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दे मेक इट अ क्लैरिफिकेशन, दे मेक इट अ सर्कुलर. सो एक तरीके से एडवांस रूलिंग भी जैसे हर किसी पे अप्लाई नहीं होती. एडवांस रूलिंग सिर्फ उसी पे अप्लाई होती है जिसने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसके लिए वो रूलिंग है. बट हम एडवांस रूलिंग भी पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये पता चलती है कि क्या एक मंशा हो सकती है डिपार्टमेंट की. तो हम उस अकॉर्डिंग अपने व्यूज लें, उस अकॉर्डिंग हम अपनी एडवाइस दें. सो दैट वाज मेंशन्ड इन द सर्कुलर कि जो आप दो गुड्स दे रहे हैं, अगर आपने फॉर सपोज किसी एक पैकेट के साथ दूसरा पैकेट फ्री दिया है, आपने एक टी शर्ट के साथ दूसरी टी शर्ट फ्री दी है, तो दैट इज नॉट सप्लाई ऑफ टू गुड्स फॉर वन प्राइस. बेसिकली इट इज अ सप्लाई ऑफ टू गुड्स फॉर वन प्राइस, नॉट कि आपने एक फ्री में दी है और एक आपने पूरे पैसे में दिया. सो अल्टीमेटली यू आर कवरिंग द कॉस्ट. और अगर हम देखें भी, अगर अपने मार्केट के हिसाब से जो ट्रेंड है आपकी इंडस्ट्री का, तो कोई भी लॉस में नहीं देता, उसका कॉस्ट कवर कर लेता है. सो दे क्लियरली मेंशन कि वो उन दोनों का आपने कॉस्ट कवर कर रखी है ऑलरेडी, उस फ्री वाले की भी कॉस्ट कवर कर रखी है. सो देयर इज नो नीड ऑफ ITC रिवर्सल. So we can validly take the ITC because these are two items given at the single price. Now, this is, I think, the major thing now. The audit department is, after running after the client for this point. So अगर आप देखेंगे जो ऑडिट निकल रहे हैं आजकल आपके सेंटर के हुए हैं, स्टेट्स के हुए हैं, तो जो मेजर कुछ इश्यूज निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं आपके 2A में जो डिफरेंस है, 2A 3B में अगर आपने ज्यादा ले लिया है तो आपको नोटिस आ जाएगा. ये RCM पे नहीं किया तो नोटिस आ जाएगा. आपका 9 से कंपेयर करेंगे तो नोटिस आ जाएगा. आई थिंक दीज आर सम पॉइंट्स जो वो ऑडिट में निकालते हैं जिसपे नोटिस भी आते हैं. बट दिस वॉज द पॉइंट दैट आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग. एक वो वाली बात होती है जैसे डॉक्टर्स और CAs जो पढ़ाई से सीखते हैं उससे ज्यादा क्लाइंट से सीखते हैं. जितनी इंडस्ट्री, जितना अलग अलग स्कोप आपके क्लाइंट का अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उतना ही अलग अलग आपको चीजें मिलती हैं ढूंढने की.
So it is a case of one of my Gurgaon client. तो उनके यहाँ ऑडिट हुआ था अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले. तो इशू जो निकाला था, जो बेसिक इश्यूज थे उसके साथ यही इशू निकाला कि आपने MEIS, आप एक्सपोर्ट पे काम करते हो उसमें, तो आपके MEIS की भी सेल आ रही है विच इज एग्जेम्प्टेड. तो आप प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करो अंडर 42-43, जिसमें क्लियरली गिवन है अगर आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, नॉन बिजनेस में यूज करते हो तो आप नॉन बिजनेस का पोर्शन हटाओ, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल तक लो, एग्जेम्प्ट मत लो. तो आपको प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना है. जैसे कि सेम आई गिव यू एन एग्जांपल, हमारे कुछ ITRs के केस में है जिनकी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि ईयर एंड पे कुछ ऐसी एग्जेम्प्ट इनकम होती है, जैसे FD की इंटरेस्ट तो जनरली सभी क्या ही होती है. तो क्या हमें वो रिवर्सल करना चाहिए प्रोपोर्शनेट, अगर टैक्सेबल टर्नओवर के साथ वो FD की इंटरेस्ट इनकम भी है? Are we looking on that? See, if I'll cover the FD interest, then there is an explanation given in section 43, I think. एंड में एक्सप्लेनेशन given है कि FD की इंटरेस्ट इज आउट ऑफ दैट, तो आप उसको कवर मत करो, आप उसको एग्जाम सप्लाई मत मानो. बट आई ट्रस्ट इफ वो एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो भी इसका रिवर्सल नहीं होता. जैसे कि MEIS है तो भी इसका रिवर्सल नहीं होना चाहिए. दैट वी एग्री कि कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो अपनी पावर ड्रॉ करती है एक्ट से, जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं आपकी एक्ट में, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट सरपास द एक्ट. तो अगर कोई भी रूल बता रहा है कि आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपको एग्जेम्प्ट पे नहीं लेना है, टैक्सेबल पे लेना है, नॉन बिजनेस नहीं लेना, बिजनेस का लेना है, तो वो जब तक कि उसका सेक्शन वही सेम बात नहीं कह रहा है तो उसको सरपास नहीं कर सकता है. तो वो दोनों ही चीजें, सेक्शन और रूल्स, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकते हैं. और अगर होंगे देन द सेक्शन विल प्रिवेल. सो ये जो सेक्शन है 42 and 43, इट ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम सेक्शन 17(1) and 2. 17(1) कहता है कि बिजनेस के लिए और नॉन बिजनेस है तो आप नॉन बिजनेस का नहीं. नाउ दिस इज सेक्शन 17 subsection 2 in front of your screen. I'll just read out to you, जिनको अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है, so that will be easy for you. Where the goods or services or both are used by the registered person, partly for affecting taxable supplies, including zero-rated supplies under this Act or under the GST Act, or partly for affecting exempt supplies that I have marked in red color under the said Acts, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies, including zero-rated supplies. So the main words to focus upon is affecting exempt supplies. So the MES license जो आपने उसकी सेल करी जो exempt था, क्या कोई भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज उस सप्लाई को अफेक्ट कर रही थी? डेफिनेटली नॉट. अगर आपने कोई सिक्योरिटी सर्विस पे लगाए हुए लोग जो गेट पास दिखते हैं, तो वो तो आपके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के तो दिखते हैं. अगर आपने एक्सपोर्ट किया या कोई भी डोमेस्टिक सेल करी, उसी के तो गेट पास दिखते हैं. MEIS का तो कोई गेट पास ही नहीं है. तो डज इट अफेक्ट एग्जाम सप्लाईज? MEIS सेल? नो. अभी रिसेंटली आई थिंक 2021 में विड्रॉ हुई है MEIS की, तो उसके विड्रॉ होने से कुछ भी इफेक्ट हुआ है, या किसी भी इनपुट या इनपुट सर्विस के अफेक्ट होने से वो विड्रॉ हुआ है? नहीं. इट वाज जस्ट अ गवर्नमेंट स्कीम. देयर इज आल्सो अ लिमिट in MEIS कि आप ऐसे 2 crore तक ले सकते हो, या certain days certain limit, I remember. तो had the input and input services affecting the exempt supplies, तो वो लिमिट ही नहीं होती. जितना आप इनपुट सर्विसेज लेते जा रहे हो उतनी MEIS की आपकी सेल होती है, लाइसेंस होता है उतना, उसका ITC होता है. जब वो अफेक्ट ही नहीं कर रही तो हम उसका रिवर्सल क्यों करेंगे? Because the word is affecting exempt supplies. So in my humble view, there is no need of reversing the proportionate, not doing the proportionate reversal. हाँ, अगर कोई exclusive है, that's a different thing, but there is no need of proportionate reversal. This ocean freight, I think we have covered. This net gross liability, तो थोड़ा सा पुराना हो गया notification, this I think amendment, but I would like to cover 2 points here. So this was the provision that was inserted in section 50.
which says that provided that interest on tax payable in respect of supplies made during the tax period and declared in the return for the said period, तो आप जैसे ही कुछ कोई भी चीज ऐसा है कि आपकी लेट हुई है रिटर्न, तो आप उस पे ग्रॉस पे इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, आप नेट पे करोगे, विच मीन्स जितना आपने कैश पे किया है, शॉर्ट में जितना आपने कैश लेजर से पे किया है, आप उस पे इंटरेस्ट पे करो. Will it cover those supplies also? I just give you an example कि आपने अप्रैल में कोई GST या 1 भरी, 3B भरी, जिसमें कि 1 लाख रुपए का इनवॉइस रह गया था. नाउ मई में अब आपको 1 लाख रुपए का वो इनवॉइस मिला, आपने उसे मई में डाल दिया, मई की रिटर्न में डाल सकते हैं. तो अब उस 1 लाख रुपए के इनवॉइस पे हमें इंटरेस्ट कैसे देना पड़ेगा, पूरा नेट ये ग्रॉस? I think the major word that is to be emphasized here is word "and," which says made during the tax period and declared in the return. So that 1 lakh wala invoice was not declared previously in April का return. So it only covers those जब आपका full fledgedly सिर्फ return late हुई, तो आप cash पे दे दो interest. But now again my question is, what about those taxpayers जो पहले ग्रॉस पे दे चुके, क्या उनको रिफंड मिलना चाहिए? Definitely there should be a provision for that. There should be a difficult removal order for that. जैसे अभी मोहित मिनरल्स के केस में मैंने डिस्कस किया था. So that those bona fide taxpayer must not be unaware of that, must not be remediless. उनको हर उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए. जैसा कि अभी स्टार्टिंग में रीना मैम ने भी कहा था कि जो इम्प्लीमेंट वो करना चाह रहे थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. अदरवाइज आई थिंक जीएसटी इज सच अ ब्यूटीफुल लॉ. सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो है कि यही सिर्फ लॉ है जो आपके ही पैसे आप बचाता है कि कहीं और मारे ना जाए वो पैसे. इट गिव्स यू अ क्लॉज ऑफ 180 डेज कि अगर आपने पेमेंट नहीं की है, सामने वाले ने पेमेंट नहीं की है, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा. अदरवाइज किसी एक्ट में आपके पैसे नहीं बचाता है. It's just a lack of, I would say, implementation undoubtedly. So I think we should wait for some years, like income tax, कि उससे भी उतना टाइम मिले एटलीस्ट कि वो अभी क्रॉलिंग स्टेज से एटलीस्ट वॉकिंग स्टेज पर आकर दौड़ने ही लगे. Now next point that we can discuss here is, I think these are two draconian provisions here, I would say, under GST law. So in section 74, an explanation was inserted through which the definition of suppression has been given. I'll just read the definition for all of you. That the expression suppression shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return statement, report, or any other document furnished under this act, or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer. So the major issue with this definition is, अगर आप देखेंगे जब हम 3B भरते हैं तो उसके रिटर्न में डिटेल्स फीड करते करते कुछ ऐसे कॉलम्स आते हैं जिनका टैक्स पे इम्पैक्ट नहीं होता है. जैसे कि आप एग्जाम सप्लाई डिक्लेयर करते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई, कॉम्पोजिशन डीलर्स वाले सप्लाईज डिक्लेयर करते हैं, नॉन जीएसटी सप्लाईज डिक्लेयर करते हैं. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अलग से कॉलम गिवन है 17(5) का 3B में, तो वो लोग आईटीसी नहीं लेते, तो डिक्लेयर नहीं करते, बट जनरली उन्होंने आईटीसी नहीं लिया होता है, तो देयर इज नो लॉस टू द रेवेन्यू, टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर आईटीसी रिवर्सल करना है तो वो अलग से कॉलम में नहीं दिखाते, सिर्फ उतना आईटीसी कम करके दिखा देते हैं. सो विल इट बी कवर्ड अंडर सेपरेशन? In my humble view, I think the clarification is undoubtedly required again here, but the separation should include only those transactions or only those, I think, columns जिनमें टैक्स पे इम्पैक्ट, जिसमें कोई रेवेन्यू को लॉस होने वाला,
So still I would say clarification is still required from the government. So हम किसी उस बेस पे थोड़ा सा हमें आगे चलने में डिफिकल्टी आएगी जब तक कि कोई कंक्रीट क्लेरिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट का. The next draconian provision that I was talking about is section 75(12). इसमें बहुत क्लियरली गिवन है. पहले जब ये इनिशियल स्टेज पे आया था तब इसमें आया था कि GSTR 1 में अगर आपने कोई भी डिक्लेयर करी है सप्लाई और वो ज्यादा है और आपने 3B में टैक्स पे कम किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ असेस टैक्स. और अगर वो सेल्फ असेस टैक्स रह जाता है अनपेड तो the same can be recovered under the provision of 79, that is direct recovery. तो जो बोनाफाइड ऐसी है जिनसे गलती से रह गया या कोई मिस्टेक थी जो हम नेक्स्ट मंथ ठीक करते हैं, कई बार ऐसा होता है, अगर उस वजह से है तो डायरेक्ट रिकवरी के प्रोविजंस कितने ज्यादा ड्रैकोनियन हो गए. बट दैट्स द डिफरेंट थिंग कि अब फाइनेंस एक्ट 2022 में जब आया है अभी तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिल जाएगी. बिकॉज अर्लियर इट वाज कॉन्ट्रोवेरिंग आर्टिकल 226 of the constitution की अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तक नहीं, डायरेक्ट रिकवरी है. So that is a sign of relief for taxpayers undoubtedly. I think this is the most vital issue or the issue that is roaming around our client. कि हमारा क्लाइंट किसी और चीज से परेशान नहीं है, सिर्फ 2A2B से ही परेशान है. बहुत मुश्किल से तो आई थिंक हम उनको ये समझा पाए थे कि मैपिंग कैसे करनी होती है. आप एक एक इनवॉइस चेक करो, हर महीने आप ये वाली ट्रांजैक्शन अलग से मार्क करके रखो, जब ये आ जाए पोर्टल पे नेक्स्ट महीने तब आपको इसका ITC लेना है. बट वी ऑल नो कि जब तक अभी फाइनेंस एक्ट से अगर मैं पहले की बात करूं तो देयर वाज नो लीगल सैंक्शन टू GSTR 2. इनिशियली अगर हम याद करें तो जब जुलाई 2017 में आया था तब GSTR 2 आया था. तो what had to be implemented by GST department or the government is there were 3 returns, GSTR 1, 2 and 3. But due to the lack of implementation, I would say GSTR 1 is 1, but the 3 has been converted to 3B, and the 2 has been converted to 2A, and now it has been converted to 2B. तो initially ये प्रॉब्लम थी और जब 2A भी था दो गवर्नमेंट ट्राइड टू मेक इट द लीगल वन थ्रू वेरियस सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस. जैसे बीच में आया था कि आप चेक करिए कि कोई भी प्रोविजनल जो ITC है वो आपको पूरा नहीं मिलेगा, आप 20% पे लो, फिर उसको कम करके 10% पे ले आए थे, 5% पे ले आए थे. एंड नाउ देयर इज नो प्रोविजन ITC. अभी जो क्लॉज ऐड किया है 15BA सेक्शन 15 में GST लॉ के, तो उससे इसको लीगल सैंक्शन मिल गया कि हाँ आपको 2B के थ्रू चीजें चेक करनी है, आपको वो मैपिंग करनी है. बट स्टिल कि ये ऐसे इश्यूज हैं जो हमने अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे जो अभी हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन लेवल पे मानने नहीं है. ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत जेन्युइन इश्यूज है कि 2A 2B था, पहले ये था, पहले तो उसका लीगल सैंक्शन ही नहीं हुआ था, एंड वी आर सबमिटिंग दैट. दो दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि हाँ कुछ ऐसे केसेस हैं जो हम जीत चुके हैं एजुकेशन लेवल पे, बट स्टिल ये एक ऐसा इशू है जो आई थिंक 90% ऑफ एसएससीज आर फेसिंग, एक्सेप्ट दोज जिनको ITC नहीं लेना है, वो बस बेचारे बच्चे हुए, बाकी सब पे ये वाली चीजें हावी हो रही. तो जब ये वाला क्लॉज आया था तब 2B के कुछ चीजें बताई गई थी कि कुछ ऐसा होगा 2B कि आपको बताया जाएगा कि आप इसका ITC ले सकते हो, इस चीज का ITC नहीं ले सकते. बट ट्रस्ट मी जब तक 2A था इट वाज रियली बेटर. अब जो 2B आया है इट इज रियली रियली डिफिकल्ट. अब इसके बाद आप ऐसे समझिए कि जो फाइनेंस एक्ट कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि आप ट्रांजैक्शन ही, आप अपना बिजनेस ही उनसे करो जो बहुत सुपर ऑनेस्ट लोग हैं, मतलब जो कभी गलती ही नहीं कर सकते, चाहे ना चाहे अनजाने में भी. तो अगर आप देखेंगे फाइनेंस एक्ट में विच इनिशियली वी वर डिस्कसिंग कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था जो रीना मैम भी कहती वो अब नहीं है.
So it was like कि टू वे ऐसा होना चाहिए कि हम मेंशन करेंगे कि इन का आप आईटीसी ले लो, इन चीजों का आप नहीं आईटीसी ले सकते, एंड देयर इज नाउ द थर्ड कैटेगरी that the credit will not be available in certain cases. And what are those cases? कि अगर आपके सप्लायर ने डिफॉल्ट कराए किसी भी पेमेंट ऑफ टैक्स में, और अगर एक प्रिस्क्राइब पीरियड तक विच इज येट टू बी प्रिस्क्राइब्ड वो डिफॉल्ट इज कंटिन्यूइंग, दैट यू कैन नॉट, देन यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट. अभी तक हमारे ही क्लाइंट के लिए इतना डिफिकल्ट था ये ट्रेस कर पाना कि सामने वाले ने, हमने अगर उनको कोई भी पेमेंट किया तो सामने वाले ने वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाई है. अभी तक उसी चीज पे इतने इश्यूज हैं कि हमारे क्लाइंट ये कहते हैं कि व्हाई शुड वी बेयर, जब हम उन्हें टैक्स दे चुके हैं और उन्होंने गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाया. नाउ इट विल बी रियली डिफिकल्ट कि अगर उसने किसी भी पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई डिफॉल्ट नहीं किया जो हमसे भी रिलेटेड नहीं है, तो हम उनको कैसे पकड़े. अब सेकंड सिचुएशन इज कि अगर सामने वाले ने वन में ज्यादा सप्लाई दिखाई है और पेमेंट कम की है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट. नाउ थर्ड सिचुएशन इज रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि आपकी 86B है जो कहता है 1% तक ले लो. तो अगर इन चीजों पे भी डिफॉल्ट किया तो भी हम आईटीसी नहीं ले सकते. नाउ द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स डे बाय डे, कि अभी तक तो ये वाली सिचुएशन से तब हैंडल हो सकती है जब पूरे जो उस इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ एक ही जन हैंडल करे. तो हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर अ क्लाइंट टू कीप अ चेक ऑन ऑल ऑफ देयर वेंडर्स, इन फैक्ट कि वो हर चीज कंप्लाई कर रहे हैं जीएसटी से, not only related to their invoice. So I think this is something we should include in our representation. I would like to request to my seniors also, we can make a write-up for that, कि ये जो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से क्लाइंट सफर कर रहा है और जबकि उसकी गलती नहीं है, दैट इज समथिंग कि उसको कोई रिकोर्स दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बीच में एक आया था कम्युनिकेशन टू टैक्स पेयर करके फैसिलिटी पोर्टल पे, जो ज्यादा यूज नहीं की गई. तो देयर शुड बी लाइक दैट फैसिलिटी कि आप कम्युनिकेशन टू टैक्स पेयर्स में कि आप सामने वाले जीएसटी को पोर्टल पे ही बता रहे हो, विच इज अ गवर्नमेंट पोर्टल, कि आपने ये वाला इनवॉइस नहीं चढ़ाया है, या आपने 200 रुपए थे आपने सिर्फ 50 रुपए चढ़ाए हैं, एंड यू आर अपलोडिंग दैट इनवॉइस ऑल्सो, तो आप क्रेडिट ले. आई थिंक दैट फैसिलिटी शुड बी देयर सो दैट एक जेन्युइन इंसान, एक जेन्युइन टैक्स पेयर इस चीज को फेस ना करे. I think this notification, or I think this amendment is again a sign of relief. इसमें जो बताया गया था गवर्नमेंट से, that is for the transfer of electronic cash ledger. So what exactly was written here is कि अगर आपकी कोई distinct entity है, तो बेसिकली पहले मैं ये बताती हूँ कि प्रोविजन क्यों लाया गया है, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही थी. तो इफ यू हैव सम डिस्टिंक्ट एंटिटी, तो आप अपनी जो क्रेडिट है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी कोई लायबिलिटी लेजर में कोई भी लायबिलिटी नहीं खड़ेगी. अदरवाइज पहले आप उसको अपने लिए यूज कीजिए, देन ट्रांसफर कीजिए. तो आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प वेरियस एसएससीज की उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी. आई थिंक दिस इज द मोस्ट हॉट टॉपिक, द सीए arrest of our CA brothers. I think इसको डिस्कस नहीं किया तो फिर तो सेमिनार में कुछ भी डिस्कस नहीं किया. तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि कौन गलत था कौन नहीं था, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि क्या कमी थी जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, 5 साल हो गए हैं छवि मैम जीएसटी को, बट स्टिल आज तक जेन्युइनली अभी गवर्नमेंट को भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या गलत करते जा रहे हैं. बहुत ऐसे नोटिसेस हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो गलत निकलते हैं, फिर हमें बताना पड़ता है डिपार्टमेंट में कि आपने गलत निकाला है, आप इसे एटलीस्ट सही तो निकालो सो दैट वी कैन रिप्लाई. और कई ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं और आज हम उसे हाई कोर्ट रिट तक जीत चुके हैं, सिर्फ वो नोटिस गलत है, क्योंकि सिर्फ वो नोटिस गलत ऑफिसर ने पास किया जिसकी पावर ही नहीं थी गलत करने. सो इट वाज अल्ट्रा वाइज व्हाट हैव बीन इश्यू. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस बहुत अमेजिंग टॉपिक है. आई थिंक ये वाला, this was the arrest memo that was issued to those CAs. Then I have taken this relevant portion. So I have highlighted
कि किस प्रोविजन में उन्होंने अरेस्ट किया था. They specifically mention that you have committed an offense specified in A, B, C, D, A or B or C or D in 132(1). So number 1 इन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया. What is or? कि या तो आप इसमें गलती करिए या आपने इसमें गलती करी है, इसमें गलती, किसमें गलती करिए, यू शुड बी श्योर. चलिए आप श्योर भी नहीं थे. Now I'll come to section 69. पूरे जीएसटी लॉ में पावर टू अरेस्ट इज अंडर सेक्शन 69, where the commissioner has reason to believe, number 1 reason to believe that the person has committed any offense specified in clause A, B, C, D of 132(1). Number 2, मैम मामला ही यहाँ पे खत्म हो गया. पूरा केस हम सबको पता है क्या था, रिफंड से रिलेटेड था. Now I'll come to 132. So this is 132(1), 2 and now it is A, B, C, D and E. बहुत सारे क्लॉजेस हैं, तो मैंने अभी ई तक मेंशन किया जितना हमारे लिए रेलेवेंट था. तो ए बोलता है जहां आपने सप्लाई की हो बट इनवॉइस ना हो, जहां आपने इनवॉइस हो बट सप्लाई ना हो, जहां आपने आईटीसी ले लिया हो, जो भी अपने फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस वगैरह हैं या विदाउट एनी इनवॉइस के, या आपने ऐसे कलेक्ट कर लिया हो बट गवर्नमेंट को नहीं दिया. तो जो अरेस्ट मेमो है, बिल्कुल सही कहा आपने मैम, जो अरेस्ट मेमो है इसमें तो कहीं भी कवर ही नहीं हो रहा ना, डी तक खत्म हो गया. वेयर इज ई, which says evades tax or fraudulently obtains refund and where such offense is not covered under clause A to D. उनके अरेस्ट मेमो में तो कहीं ई नहीं है. They've just copied and pasted it. So when the arrest memo is, so I would say void ab initio, जो अरेस्ट मेमो ही गलत है, how could they arrest? वो गलत है या सही है, that's a different thing. But that's where even the department is lacking. That's where even they don't know how to issue the notice and what are the provisions to mention. कोई भी आप मैम अगर SCN आता है तो उसके क्राइटेरिया होते हैं, ये चीजें SCN में होना चाहिए. उनको प्रॉपरली लिखना चाहिए कि आप इस सेक्शन में कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी है. अरेस्ट मेमो में आप क्लॉज तो लिखिए और सही तो लिखिए. जो होना चाहिए कम से कम, it has to be clear and speaking. Exactly. तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है. नंबर 3, जो मैं मतलब इस चीज से रिलेशन नहीं है, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट टाइम इज 7:50 PM आउट ऑफ द ऑफिस आवर्स. मतलब कोई मतलब नहीं है. मतलब जो मैंने सुना है मैं उस बेस पे बोल रही हूँ. मतलब आई मेट वेरियस सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स और जो आपके NIRC में थे, कि जो CA थे वो गए थे वहां पर. So it was nothing like कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, कुछ नहीं किया. And arrest is the last resort. जब कोऑपरेट नहीं कर रहे तो आप कर रहे, जब आप ऑफिस आवर्स के बाद बुला रहे हो फिर भी इंसान कोऑपरेट कर रहा है और अरेस्ट कर रहा है, वो भी गलत अरेस्ट में मुंह से. Now the major thing that was mentioned here, number 1, that was where the commissioner had reason to believe. So what is reason to believe? पहली बात तो इस अरेस्ट मेमो में कोई रीजन टू बिलीव नहीं है. चलो आपने नहीं दिया, इट वाज नॉट मैंडेटरी, बट आपको शक है, क्या ये रीजन टू बिलीव है? क्या ऑफिसर को लग रहा है ये रीजन टू बिलीव है? लग रहा है ऐसा नहीं, उसको पता है. दे शुड हैव अ मटेरियल एविडेंस. There are various case law. Amazing one is Lakmani Mehul Das. Then there is IPCA Lab Limited, Vimal Yashwant Giri Goswami. That reason to believe is not suspicion. They should have an evidence, material evidence. That should be concrete. So that arrest memo is completely, I think, a trash one. जो आई थिंक अगर सही करते तो बात अलग होती, बट दैट्स द डिफरेंट थिंग. जो सही है गलत है, बट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. नाउ दिस इज द इशू इम्पार्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी. आपने जैसे कोरोना में देखा होगा, इनफैक्ट जैसे अभी अतुल सर ने भी बोला, हमने लास्ट साल से चालू किया है. अभी कोरोना से एवरी वन इज सो एक्साइटेड. कोरोना आते ही सबने सब ऑनलाइन चालू कर दिया था.
सिर्फ आई थिंक वाओ सीरीज वाज आल्सो कि कोरोना के टाइम पर वुमेन मेंबर्स भी आ रही हैं, और अभी लास्ट ईयर ही थोड़ा सा ऐसा था, कोविड का भी है अभी भी। तो जितने हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, हमारे रीजनल मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, हर कोशिश करी कि जो कोरोना पीरियड है उसको भी कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। यही सोच कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज की थी। हमारे पास कुछ ऐसे ओपिनियंस आए थे दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस। दैट यूनिवर्सिटी वाज बेस्ड आउट ऑफ यूएस। तो उनका ये था कि जब कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, तो उनके स्टूडेंट्स अब इंडिया आ गए। अब दे हैड टू कंडक्ट द क्लासेस थ्रू द ऑनलाइन मोड। Now, what kind of suppliers will be in OIDER services, online information and database access or retrieval services? जो ऑनलाइन सर्विसेज आपकी आ रही हैं। Just a second, Shreyans. Yeah. Shaurya. Shreyans, let's keep the question answers for the end. Let the deliberation come to an end and then we'll keep it. Yeah, or for the time being, they can post it in the chat box. So what are the OIDR services? सभी उस टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं. So it means a service whose delivery is mediated by the IT over the internet. So definitely the IT was involved, or an electronic network. I think Shreyansh has raised his hand again. Shreyans, you want to say something, or if there is a question, please post it in the chat box. We'll take it up at the end of the session. Okay. So over the internet or an electronic network भी है, जब कोई foreign university उधर से पढ़ा रही है online से यहाँ के students को, and the nature of which renders their supply essentially automated भी, and involving minimal human intervention and impossible to ensure in the absence of IT. So my question is, what quantum of human intervention is said to be the minimal one? क्या वो machine turn off on करना minimal? So when the faculties are deliberating, or when the faculties are taking the lecture over internet to their students, तो जब वो faculties ही lecture नहीं देंगी तो वो क्लास ही नहीं होगी. So that was not minimal human intervention. तो बहुत अच्छा quantum of human intervention है कि क्लास ही ना होना उसके बगैर. So that will not cover under OIDR. Had it been the recorded classes कि सिर्फ switch on किया चल गया, so that might be covered under OIDR services. दो इसके ऊपर कोई भी ऐसा केस लॉ नहीं है, but that is purely my humble opinion कि जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन इतना नहीं है कि जिसके बगैर क्लासेस रुक ना जाए, तब तक that will be covered. This is again some issues with those who are filing appeal under GST. वैसे तो अभी GST में appeals कम है, I think ये साल, और I think इतना लगेगा कि सर्विस टैक्स की appeals और सब cases जितने भी हो रहे हैं, I think next year से we are expecting कि बहुत अच्छे cases आने वाले हैं GST में. तो जब भी हम कोई भी अपील करते हैं, चाहे GST हुई, चाहे कोई भी लॉ हुआ, तो उसमें प्री डिपॉजिट का क्लॉज है, प्री डिपॉजिट जमा कीजिए. जैसे सर्विस टैक्स के टाइम था 7.5% और 10%, तो ऐसे ही अभी GST में. So that pre deposit is required to be paid through credit ledger or cash ledger. That is the question. So there was a appeal जो credit ledger से पे करके अपील लगाई गई थी, और सिर्फ इसी ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज कैश नहीं यूज हुआ है. I'll just discuss that case with you. It was the case of Jyoti Constructions, जिसमें असेसी का कहना था कि क्योंकि प्री डिपॉजिट कैलकुलेट ही ऐसे होता है 10% ऑफ आउटपुट टैक्स, 10% ऑफ टैक्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड.
तो दैट इज अनडाउटेडली द नेचर ऑफ आउटपुट टैक्स. तो आउटपुट टैक्स को तो हम क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ कर ही सकते हैं. बट द डिपार्टमेंट सेट कि दैट इज फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ओनली. दैट डज नॉट गिव द कलर ऑफ आउटपुट टैक्स. तो आपको जो पेमेंट करनी है प्री डिपॉजिट की, वो कैश लेजर से ही करनी है, क्रेडिट से नहीं करनी. एंड एक्चुअली द अपील डिपार्टमेंट इज रिजेक्टिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ एडजस्टिंग इट थ्रू क्रेडिट लेजर. And this is margin scheme. What exactly the margin scheme is? जो भी डीलर्स आपके सेकेंड हैंड गुड्स में डील कर रहे हैं, सेकेंड हैंड कार की सेल में, that are covered under margin scheme at their option, and they are not allowed to take the ITC. So what about ITC in respect of the common credit? अगर वो किसी टेलीफोन का ITC ले रहे हैं, तो क्या पूरे ही टेलीफोन का ITC नहीं लेगा? या प्रोपोर्शनेट ले सकते हैं, या पूरा ले सकते हैं? बिकॉज ये तो क्लियर है कि गाड़ी पे तो नहीं मिलेगा जो परचेज किया. So I got from one advanced ruling, Deccan wheels. Though advanced ruling is applicable only on Deccan wheels, because जो सिर्फ वो ruling के लिए apply करता है वो उसी के लिए applicable होती है. But we can again draw an inference from that advanced ruling. It had been specifically mentioned कि जो word mentioned that is on such goods and that is purchase price versus cost. तो जो आपको ITC नहीं लेना है वो सिर्फ उस कार का नहीं लेना और उस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नहीं लेना, अपने रिपेयर मेंटेनेंस का नहीं आप मत. बट जो टेलीफोन एक्सपेंस है, जो फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एक्सपेंस है या और कोई एक्सपेंस है, आप उस पे ले सकते हो. सो दैट इज वन थिंग आई थिंक वी शुड पॉन्डर अपॉन कि हर चीज का ITC हमें ब्लैंकेटली मना नहीं करना है. तो देयर आर आइटम्स, देयर आर इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज ऑन व्हिच वी कैन टेक द ITC अंडर मार्जिन स्कीम. दिस इज अगेन द टॉपिक जो डिपार्टमेंट आजकल बहुत ज्यादा इस चीज पर नोटिसेस निकाल रहे हैं. एंड ये स्पेशली एक्सपोर्ट में जो डील करते हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए जो मेन इशू आ रहा है. सो देयर इज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स गिवन इन फेमा कि जब भी आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी जो रियलाइजेशन है एक्सपोर्ट करेंसी की वो इतने दिन में आ जानी चाहिए. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि 12 to 15 मंथ्स में आ जानी चाहिए. So this rule was inserted कि आपने रिफंड तो लगा दिया, एक्सपोर्ट किया, बट आपका कोई भी रियलाइजेशन नहीं आया विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय फेम एक्ट, तो आपको वो पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा. हाँ, पर अगर आपके पास आ जाता है बाद में तो आप उसको 30 दिन के अंदर आने के आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाओ तो आपको वो वापस मिल जाएगा. Now the issue is, so it was the case of one of my client जिनका ऑडिट हुआ था 17, 18, 18, 19, 19, 20 का पूरा. तो they blanketly applied it for all the 3 years कि रूल 96 भी आया है तो आपको हर चीज पे ध्यान देना. आपको 3 सालों में आपने इतना रिसीव नहीं किया तो आप इस पे इंटरेस्ट दो और आप इनका रिफंड वापस करो. But the major thing that we should think here is that this rule had been inserted on 23 March 2020. Can they apply it with the retrospective effect unless it is not mentioned? And it was not mentioned ki retrospective effect. Definitely they cannot, and there are in number of cases for that. So that is something we have to see कि अगर कोई भी ऐसा रूल लगा रहे हैं डिपार्टमेंट में तो वो कब से अप्लाई हुआ है, वो रेट्रोस्पेक्टिव है कि नहीं है. ये हर चीज देखना बहुत इम्पोर्टेंट है. Now this is one of the relief, or I would say a good case law for those who are dealing with the sale of lands. तो जैसे हम यूजुअली जानते हैं कि शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है आपका कि सेल ऑफ लैंड इज आउट ऑफ GST. अब जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक डीमिंग फिक्शन है कि आप 1/3 लगाओ
and that will be treated as the value of land. अभी हम बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं. तो क्या वो 1/3 वाली कैलकुलेशन बिल्कुल सही है? That deemed deduction is valid or not? So there is a case ruling that had been given by Gujarat High Court in the case of Munjal Manish Bhai Bhatt. So it was given that 1/3 concept cannot be applied arbitrarily in all cases. अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू गिवन है लैंड की, आप निकाल सकते हो तो आप उस केस में लगाओ. इनफैक्ट जब 14th जीएसटी काउंसिल हुई थी, जब इस चीज के बारे में पहली बार बताया गया था, तब जो स्पीच थी या जो डिस्कशन था उसमें क्लियरली गिवन था कि ये जो एग्जांपल्स दिए गए थे वो अनडिवाइडेड लैंड के थे. जैसे आपका फ्लैट हुआ, तो जिस केस में हम लैंड का पता नहीं लगा सकते हैं कि किसको कितना है. बट हैड इट बीन द केस ऑफ अ बंगलो जिसमें लैंड किसी और से लिए, कंस्ट्रक्शन किसी और से लगाया, तो वी कैन वेरी वेल असेस की कितनी वैल्यू है लैंड की. बट जब नोटिफिकेशन आया 1/3 वाला, वो ब्लैंकेटली लगा दिया गया हर किसी पे. One more thing, that जो 1/3 वाला concept है, it has been given by the notification. But the delegated legislation, and just, yeah, here it is. But जो power आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपकी law से. So is the section 15 subsection 1 जिसमें actually word given है. The value of supply of goods or services or both shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both. So when the section itself says कि actually paid जितनी value है, आप उतनी मानो, तो जो notification बता रहे value, how can it overrule the section? यही वाली बात डिपार्टमेंट ने बोला इस केस में कि अल्टीमेटली जो हम टैक्स लगाना चाह रहे हैं, दैट इज ऑन द सर्विस पोर्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, नॉट ऑन द लैंड. तो अल्टीमेटली जो चीज हमें टैक्सेशन में लानी चाहिए, वैल्यूएशन पहले नंबर तो उसी का होना चाहिए, बट जो वैल्यूएशन की चीज बताई गई है वो लैंड के लिए बताई गई है. अगर हम थोड़ा सा और पहले भी जाएंगे, प्री जीएसटी रेजिम में जब सर्विस टैक्स था, तब उसमें भी यही इशू था. जैसे इट वाज अ केस ऑफ सुरेश कुमार पंचल, उसमें क्लियरली गिवन था कि अगर आपका कोई अबेटमेंट गिवन है और लेकिन यू कैन असेस द एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू, और जब वही वाले एक्ट सब्सिम हुए हैं जीएसटी में, तो वही वाली चीज जीएसटी में ट्रांसफर होनी चाहिए. So it had these lines that I have underlined here. So it was mentioned there that the argument of the revenue that there was an abatement notification to take care of deduction for land was rejected on the grounds that merely abatement by way of notification could not be a substitute for statutory valuation mechanism. तो जब एक्चुअल वैल्यू हम निकाल सकते हैं तब तक हम 1/3 नहीं लगाएंगे. अगर वो कोई फ्लैट का केस है, कोई ऐसा जब हम नहीं निकाल सकते, तब हम 1/3 का केस लगाएंगे. That we have discussed. Yeah. So I would give you this 2 situations also. जब एक one situation है जो actual basis है, जो आप अगर ये वाला केस लो के अकॉर्डिंग लगाते हो, मुंजाल मनीष भाई भट्ट, and the second situation is 1/3 वाला केस जो हम लगाते आ रहे हैं. So if the land amount is for suppose 85 lakhs and the construction was for 15 lakhs, तो जो actual situation है उसके according जो taxation होगा वो 15 lakhs पे लगेगा, that is 2.7 lakh. But जो situation 2 है जिसमें deeming fiction है, तो अगर आप देखेंगे आपकी जो land है वो भले ही 85 की है, बट वो मान ली गई है कि वो 33 की है. तो undoubtedly it is treating as a loss to the assessee कि जिस चीज को पता है उसको भी डीम्ड मांग रहे 33. अगर नहीं पता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम नहीं निकाल सकते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो इस केस में अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी, 67 हो रही है, तो टैक्स इसमें 12.06 आ रहा है,
which is again a loss to the city. अब कुछ लोग कहेंगे कि अब तो ऐसे तो हम लैंड की वैल्यू बढ़ा दें और कंस्ट्रक्शन की कम कर दें, तो जीएसटी बच जाएगा. बट the government, the department is not remediless. There are rules for valuation. So the valuation rule says, these are the rules for valuation. Rule 28 जो लगता नहीं है, जो wholly not wholly in money का है, अभी मैं हटा देती हूँ, एजेंट के थ्रू वो भी हटा देती हूँ. Now there are 30 and 31 rules. So there's cost plus method also. ये भी लग सकता है, और अगर वो ठीक नहीं लगे तो reasonable means वाला भी लग सकता है. तो कभी भी ऐसा है तो गवर्नमेंट और द डिपार्टमेंट हैज दिस रेमेडी कि उनको ये नहीं लग रही है वैल्यूएशन ठीक, तो दे कैन वैल्यू दिस फ्रॉम दिस रूल नंबर 31. तो इस केस में डिपार्टमेंट के पास भी है पूरा अपना रास्ता कि वो 31 के थ्रू जा सकते हैं. हमारे पास भी है कि हम मुंजान मनीष भाई भट्ट के थ्रू जहां हम निकाल सकते हैं. जैसे बंगलो का केस था जो मैंने दिया, जो एक्चुअली इन्हीं का केस था, इसके ऊपर ये केस लो आया, हम उस केस में भी जा सकते हैं. I think pre-deposit I have covered. Chabi ma'am, can I take 5 minutes? And just, it's feasible. I'll just stop for 5 minutes. Shall I? Okay. Yes, you can. Thank you so much. Let's switch off the fan. I think I'm audible now. So some more points that I'm going to discuss, which is not included in these slides are, जैसे आप नॉर्मली देखेंगे उन केस में जो आपके क्लाइंट्स कार डीलर्स हैं, हर उस क्लाइंट डीलर के यहाँ डेमो कार तो जरूर होती है, विच इज रिक्वायर्ड कि वो डेमो दिखा सके क्लाइंट को. वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो डेमो कार ना हो आपके क्लाइंट के पास और सेल होती रहे. और जनरली आप देखेंगे उस इंडस्ट्री में डेमो कार्स होती है. सो देयर वाज अ रूलिंग जिसमें आई कैन नॉट रिकॉल द रूलिंग नेम, बट देयर वाज अ रूलिंग जिसमें ऐसा भी आया है कि वो डेमो कार्स जो हैं अगर आप बेचते हैं कुछ टाइम यूज करने के बाद, जो जनरली होता भी, तो वो सेकेंड हैंड गुड्स का कलर ले लेगी, सेकेंड हैंड गुड्स जैसे बिकेगी, और आप उस पे नॉर्मल उस सिचुएशन से नहीं लगा सकते हैं. आई थिंक
आज किसी का क्वेश्चन आया है, कैन वी गेट जीएसटी क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ ईवी कार? आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका काम किस चीज का है. अगर आप ऑलरेडी कार डीलर हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आप कार में डील नहीं करते तो इट विल कवर्ड अंडर सेक्शन 17 सेक्शन 5. तो चाहे ईवी कार हो, आई थिंक कोई भी कार हो, तो उस पर तो आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल सकता. Shaurya, that question was posted by me. अच्छा. Yeah, one of my client is running a hotel business and wants to purchase electronic vehicle for a pickup and drop facility provided to the guest. Mhm. Complimented to the guest. They will not take any kind of charge from the guest. So the question is simple, that the car is only used for the business purpose. So can't we get the credit of GST? And what is the nature of business? Pardon? What is the nature of business that he is dealing with? Hotel business. होटल बिजनेस. ओके, सो आई जस्ट रीड आउट कि लिखा हुआ क्या है ना लॉ में, फिर वील डिस्कस कि मिल सकता है कि नहीं. सो सेक्शन 17(5) says the motor vehicle for transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13%, except when they are used for making the following taxable supplies for the further supply of motor vehicles. Then there is no further supply of motor vehicles. Transportation of passengers, yes it is, and imparting training on driving such motor vehicles. So there is no I think training in driving. So if it has the capacity not more than 13%, then definitely they can for the transportation of passengers. So the client can get the credit of GST, right? No, the Yeah, question is not more than नहीं है, more than 13% है. not more than 13%. So that is the negative way you have to see to it. Yeah, but Small that I think the car that she's talking about is more than 13% capacity, na? If it is a more than 13% capacity, then you can Then avail they can, ITC. yeah. Then they Yeah, can yeah. avail the ITC. In the Yeah. case of hotel business, if you charge, Tanvi, if you want that it will, so then you should charge something, then you can give discount. There's other way doing it. Yeah. Because then it will be covered under transportation of passengers. If you can cover into that, then you can claim this ITC, otherwise not. But ईवी व्हीकल जितने भी हैं उन सबकी किसी की भी जो है रजिस्टर्ड कैपेसिटी 13 से ज्यादा की अभी कोई भी ईवी व्हीकल नहीं है. Other than the bus. If you have bus EV vehicle, then it is admissible irrespective of any business. Yeah. so means जो client है उसे कुछ charge करना पड़ेगा से for pickup and drop, minimum charge. So credit मिल सकता है, right? Yeah. Provided obviously the capacity that we are talking about, कि अगर 13 से ऊपर और नीचे ये हमें देखनी पड़ेगी. 13 से तो नीचे है, EV four wheeler है, pickup and drop. Okay. तो 5 seater ही है. Yeah, that we have. Okay. So that point we were discussing is of demo cars and some other issues. I think the main issue, yeah, that was under the car business is कि आप देखेंगे कि कोई भी जैसे भगवान की तस्वीर या कुछ चीज ऐसी देते हैं जो कार के साथ देते हैं, जो आपके देखेंगे आप डीलर्स वगैरह. So will it be covered under like free items and no ITC will be taken by them? So will it be treated like this? That. So there are some judgments in favor also. There are some judgments in pro revenue also कि आप नहीं ले सकते. So there was one judgment which says कि अगर आप कार नहीं देते तो आप वो item भी नहीं देते. So you are not giving that item for free कि अगर कार नहीं है तो भी आप free ले. So that will take the color of that offer that I was talking about कि आप कोई भी item दे रहे हो तो वो आप उसी price पे दे रहे हो दो items. So they can very well take the ITC. But yes, undoubtedly there are some negative judgments also. तो जो जूनियर लेवल्स हैं, जो आपका एजुकेशन लेवल है, तो काफी वो इन चीजों पे इशू उठा रहे हैं. तो देयर इज अनडाउटली दिस व्हाट यू कॉल प्रॉब्लम है कि हम जूनियर लेवल पे ये नहीं जीत पा रहे हैं. हमें मे बी शायद अब वो बात अलग है, आप अपील लेवल पे जीत जाओ या आप हाई कोर्ट तक जीत जाओ. I think, Shaurya, I think what is important in this case, every case is peculiar. The nature of transaction has to be seen case to case first thing. Yeah. Like in Amazon case, when I'm buying an air conditioner of 80,000 rupees, it is basically because of the offer.
not because of the air conditioner. Mhm. So there the offer becomes different. And here in case of car where I'm getting any free gift, a box of chocolates, XYZ, anything else, I'm not buying the car because of chocolates. I'm getting chocolates Yeah. along with the car. Yeah, So yeah. every transaction has its own nitty-gritties. So Yeah, that yeah. has to be seen case to case, and Case to case. every judgment has its own case laws and own case history. इनफैक्ट जैसे क्या है अभी एडवांस रूलिंग में भी यही होता है कि आप केस टू केस और क्लाइंट टू क्लाइंट होता है, मतलब जिस पे लगी है वो, तो आप ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जीएसटी में भले ही केस लॉ आया है, बट दैट स्टिल हैज टू बी सीन केस टू केस बेसिस. अब जैसे जो ओशियन फ्रेट का दैट इज फॉर सीआईएफ ओनली, कि आप सीआईएफ पे है तो आप वो सीआईएफ वाले पे तो आप लगा सकते हो. बाकी अगर कोई सिचुएशन है तो आपको अगेन यू हैव टू डू समथिंग एल्स, यू हैव टू डू और you have to advise something else. See, this suggestion given by you is client ने उसके लिए अलग से चार्ज करना चाहिए, राइट? क्या हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो टैरिफ है होटल का उसमें वो सर्विस चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है? किस केस में? जो केस अभी मैंने कहा ना ईवी व्हीकल के जीएसटी के क्रेडिट के लिए, तो आपने रीना मैम ने सजेस्ट किया कि आप अलग से उसको चार्ज ले क्लाइंट मतलब कस्टमर से, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो कस्टमर है उसके टैरिफ में ऑलरेडी जो ये सर्विस है इसके चार्ज इंक्लूडेड है? क्योंकि डेफिनेटली बिजनेस पर्सन है, कॉस्ट अपने पॉकेट से तो पे करेंगे नहीं, जब कॉस्ट निकाली होगी रूम की तो उसमें वो चीज उन्होंने इंक्लूड करी होगी, तो क्या ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं चीज को? Then you have to see the offer letter. जो ब्रोशर होते हैं हमारे, जो हमारे होटल के हम लोग बनाते हैं, there you have to mention it that this includes so and so. And then transportation services में हमको हमारा उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यूजुअली होटल्स वालों का होता नहीं है. So these things, see, ये सब जो है ना particular situations हैं, जैसे कार के केस में हम चॉकलेट देते हैं या जो भी है, इसमें see the question is कि इसके सब में क्वांटम जो होता है ना वो इतना हाई नहीं होता है कि हम उसके लिटिगेशन में जाएं. Right. These all things हाई कोर्ट में आपको रिलीफ मिल जाएगी, बट टिल ट्रिब्यूनल आई एम वेरी मच डाउटफुल, क्योंकि ट्रिब्यूनल तक वो डिपार्टमेंट के आदमी होते हैं एंड दे ऑलवेज वर्क फॉर द डिपार्टमेंट. सो इफ द क्वांटम इज नॉट हाई, क्योंकि जो ये आइटम बहुत कम होती है, सो आई सजेस्ट टू माई क्लाइंट्स कि आप उसका 1 रुपया चार्ज करो. एक तो क्या है कि आपको अपना स्टॉक भी आउट करना है, so that if you charge that on your bill for 1 rupee and then you give a discount of 1 rupee, then there is no violation of law, there is nothing. क्योंकि जीएसटी के अंदर कहीं भी आईटीसी जो है आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और 1 रुपए में अगर आपने बेच दिया है तो उसके अंदर कहीं रिवर्सल ऑफ आईटीसी का क्लॉज नहीं है, as in VAT we used to have in UP VAT, right? तो यहाँ पे इट इज एडवाइजेबल, वी शुड एडवाइज आवर क्लाइंट्स कि आप उसको जो है आइटम दिखाइए, चार्ज करिए and then give a discount for that, so that you don't fall in the clutches of section 17. क्योंकि section 17 को वो जो है ना वर्बटम पे पड़ता है ऑफिसर, and it should be on the face of it. देखना चाहता. This is what I suggest to my clients, and I would say that is a better way to get away with this rather than going into litigation for such small, क्योंकि इसमें आईटीसी की वैल्यू होती है छोटी. लिटिगेशन आप उसको अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो यू विल फाइंड इट इज बेटर कि इसको छोड़ दिया. इनफैक्ट क्लाइंट ही कई बार बोल देते हैं कि इट्स बेटर कि हम पे ही कर दें, कौन करेगा ना लिटिगेशन की कॉस्ट आएगी. सही बात. क्योंकि चॉकलेट्स के केस में जो है फूड एंड बेवरेजेस वाला भी आ जाएगा, लग जाएगा. हाँ, जबकि एज सच देखा जाए तो फूड के ऊपर भी जजमेंट्स थे वैट के अंदर कि वेदर चॉकलेट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फूड और नॉट. बट अगेन citing these judgments, that judgments are good at the level of High Court. Judgments have got no value at the level of tribunal. बहुत ही कोई अच्छी हुई कोई जुडिशियल पर्सन आ गया तो आपकी किस्मत है, अदरवाइज इन केसेस में ट्रिब्यूनल तक कोई रिलीफ मिलती नहीं. So true. ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया. आई थिंक 2A2B वाले इश्यूज जो हैं, तो आई थिंक हर एसएससी के केस में उसमें भी एजुडिकेशन लेवल पे नहीं दे रहा. कुछ नहीं होना है उसमें. 2A2B के अंदर सी ये ऑफिसर लेवल पे वो ऑफिसर एडमेंट है, मुझे तो जो दिख रहा है मैं दूंगा, इररिस्पेक्टिव आप कुछ ही कर लो. हाँ, so उनको either if your quantum is high then wait for, otherwise
I would say what I am doing is कि interest जमा करके आप अपनी penalty बचा लो. If the quantum is not high, and then file an appeal, और फिर उसके बाद बैठ जाओ. Let some high court cases come. High court आएंगे. Because this 2A 2B for till October 2019, they cannot disallow on the basis of 2A. Right. 36(4) जब आया है उसके बाद आप कुछ भी बात कर सकते हो. उसमें भी अभी वाइस ऑफ 36(4) is also under challenge, जो आज तक अभी कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है. So let's see what happens. So I think that's all I have for discussion with you. Good presentation. Sorry. Thank you so much. Excellent. Ma'am. Thank you so much. Reena ma'am, we have another half an hour with us. So would you like to take over the dais for another 15 minutes for any practical, your knowledge, your experience on this? Members have any query, they feel any compliance thing or something, if I could be of some use, I'm there. Yeah, some. Members may come in. Let's have this as an open forum now. So we have good 171, 172 participants with us. So Reena ma'am is saying if we have questions, go for her, and we can take the use of her experience and expertise and diverse knowledge of GST. So is there any question which is available for compliance for her? Recently, one very typical query came to me yesterday. Only one of our fellow CA called me. I don't know. मैं actually किसी का WCT का काम नहीं करती हूँ. So the peculiar thing was कि he is filing this Form 7. Form 7 होता है शायद WCT का. तो उसके अंदर you can download the certificate only once the recipient has accepted it. Before that, you cannot download the certificate. Now the question is कि सामने वाला accept नहीं कर रहा है उसको, और इसके अंदर ये है कि within a period of time, एक उसके अंदर ये भी है कि आपको इतने पीरियड के अंदर डाउनलोड करके सर्टिफिकेट इशू करना है. Now how to issue that? So अभी हमारे पोर्टल के अंदर इतनी सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो बड़ी दिक्कत कर रही हैं. हम लोग जब डे टू डे उसमें देख रहे हैं. So anybody face this problem? Anybody filing this WCT का कोई अगर कर रहा हो तो उसको प्रैक्टिकल पता होगा कि क्या है इसके अंदर. Can we have the full screen? I think you should. In fact, I think stop sharing then. Yeah, I just stopped sharing. So we can have the members. I think हमारी स्क्रीन पे खाली पैनलिस्ट ही दिख रहे हैं. I think WCT के साथ तो ये भी इशू है काफी. अब जैसे 5 साल हो गए 3B में, but still there is no such recourse for negative liability. कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट नोट ज्यादा हो जाते हैं, सेल्स नहीं होता ना, तो that is another problem. एक वो दूसरा जो कंपोजिशन वाले में नेगेटिव लायबिलिटी का शुरू. Then we have to wait for another month. That no question is कि किसी एक क्लाइंट की एक IGST सेल हुई, किसी एक महीने में उसकी IGST सेल हुई. नॉर्मली वो IGST सेल नहीं करता और उसका माल वापसी आ गया. अब वो कभी एडजस्ट ही नहीं कर सकता उसको. एंड ये मेरे क्लाइंट के केस में ये प्रॉब्लम है, कई केसेस में है. वो मार्च में सेल होती हैं, फिर वो वापसी हो जाती हैं, काफी कुछ होता है. कुछ तो मार्च में सेल वो लोग कर लेते हैं. कभी कभी पुश सेल होती है ना, अरे ले लो यार ठीक है बाद में देखेंगे. अब माल उसने वापस कर दिया. अब अगले 9-10 महीने तक वो होगी नहीं. अगले 9-10 महीने तक होगी नहीं, 11वें महीने में जब होगी तो आपको याद नहीं रहेगा कि पुराना छूट गया. वो भी एक मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि आप कब तक उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो अपनी किताब. क्योंकि ये लिखना तो आपको किताब में ही पड़ेगा, वहां तो कोई है नहीं. GSTR 1 में तो आप दिखा दोगे. देन क्वेश्चन इज कि यू विल गेट अ नोटिस. 61 का नोटिस चलाएगा आपका. GSTR 1 और 3B टैली नहीं कर पाएगा, आपने 3B में ज्यादा दे दिया है.
180 डेज के पेमेंट का गवर्नमेंट ने कौन सा हमें जो है फोरम दिया जिसके अंदर हम ये कह सके, हमें एक फोरम तो दीजिए जहां हम 180 डेज की कंप्लेन कर सकें कि साहब इसने मुझे 180 दिन में नहीं दिया है। अगर 180 days का issue is also raised by the audit departments now. Audit department is after this only because आपने payment इसके अंदर तो कुछ कर ही नहीं सकता ना सामने वाला। 180 days में तो date of invoice, and another thing is कि it is date of invoice, not the date of entry in books of accounts or the completion of your, I mean एक हमारा contract होता है कि मेरी एक invoice बनेगी, वो माल आएगा। सपोज वो जो है एक टेक्निकल टीम से पास होता है और उसका एक टाइम जो है वो 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीना तो मेरे स्टॉक में आता ही नहीं है, स्टॉक इन ही नहीं होता है, तो 1 महीने के बाद तो मेरी किताबों में वो दूसरे महीने चला। नाउ जब अभी तो जीएसटी या 9C चला गया, थैंक गॉड, जब 9C हम सर्टिफाई कर रहे थे, आई मीन आई एम वेरी हैप्पी, frankly I am very happy with the 9C is gone. काफी लोगों का ये व्यू था, अरे मतलब सीएस को प्रॉब्लम नहीं थी बट रिश्तेदारों को ज्यादा दिक्कत थी, अरे ऑडिट चले गया, अरे ऑडिट चले गया, बट द मेजर इशू इज कि बैलेंस शीट भी तो उन्हीं को बनानी थी। नहीं देखिए, अगर मेरा ओपिनियन आप लें तो 9C जो हम लोग कर रहे थे ना, उसके अंदर हम ये जो अभी CRS हुआ है ना, इससे कम नहीं कर रहे थे। कि जो ऑडिट की डेफिनेशन है सर्टिफाइंग द ITC और ITC के जो सेक्शन 16 के जो लिम है ना चारों, द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, हाउ कैन यू प्रूव इट? कितने आपके क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ स्टॉक रिकॉर्ड्स है, जिनके यहाँ स्टॉक की एंट्री होती है द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड ऑन सो एंड सो डेट? हार्डली। हम सबको पता है हम स्टॉक कैसे वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट देते हैं, किसी के यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि टर्नओवर 2 करोड़ और 5 करोड़ थी और 5 करोड़ वाला किसी के यहाँ नहीं है कि उसके यहाँ स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए। हमारे पास में कोई मूवमेंट का जो है, जो ईवे बिल का था, ईवे बिल का रिकंसिलिएशन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट, क्योंकि आप एक ट्रांसफर भी कर रहे हो तो ईवे बिल बना रहे हो। अब वो ट्रांसफर था, स्टॉक ट्रांसफर था, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच था, तो उसको पूरा रिकंसाइल करना, then e-way bill is made with inclusive of taxation, so amount is never going to tally with that, so lot of things। और डिपार्टमेंट को आदत है e-way bill, अगर ऑडिट वाले जो हैं वो ये चीजें पकड़ते हैं, ये आपका जो 61 के नोटिस है ना, 61 के नोटिस को छोड़ दीजिए, जब ऑडिट वाले हैं वो ई-वे बिल को लेके बैठ जाते हैं, आपका 180 दिन को लेकर के बैठ जाते हैं, और आपका ITC 2A 2B लेकर के बैठ जाते हैं, ये उनका मेन थ्रस्ट रहता है। तो उनके थ्रस्ट में अब ई-वे बिल का अभी तो इन्होंने वो NHAI से और वो कर लिया है, तो CCTV की कवरेज और निकलवा लेते हैं कि वहां से, अरे आपका तो ट्रक पास ही नहीं हुआ वहां से, और आप कह रहे हो ई-वे बिल है, ट्रक नंबर है, सब कुछ है, ये ट्रक नंबर तो वहां से पास ही नहीं हुआ। सीधा उनका एलिगेशन यही होता है कि ये ट्रक तो उस रूट से आया ही नहीं था, और आप कह रहे हैं माल आया ही नहीं। तो एंड हम तो वी रिलाई ऑन आवर क्लाइंट, अब जब रिलायंस आ गई तो फिर ये गुड़गांव वाला केस आ गया, फिर आप कहीं दूर नहीं हो। सो दैट इज, जो तलवार लटकी थी वो GST या 9C जाने से we are relieved of that. अच्छा, क्लाइंट जो है उसकी आदत कभी नहीं सुधरी है, ना वो टैक्स ऑडिट में सुधरा, ना स्टैट्यूटरी ऑडिट में सुधरा, ना इसमें सुधरा, उसको आना हफ्ता भर पहले ही। लास्ट मोमेंट में अब सुधरेगा वो भगवान ही माने। तो जब वो आता है तो आपको इतने कंप्लायंसेस में और इतने में उसमें देख करके अगर लगता है कि ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि फीस तो वो आज भी देके जा रहा है ना, कौन सा 9C वो तब अपने आप भर ले रहा है, कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं रही हमारी। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है लीना जी की, और ये बात तो सही है कि आपको तो अतुल जी बहुत झेलना पड़ता होगा, क्योंकि आप तो लीडर हैं, तो आपके तो कि ऑडिट चला गया, आप लोग कल चला गया वहां बैठ करके, जी आपके रहते हुए ऑडिट चला गया, आप लोग कुछ नहीं है, लीडर्स जो हैं सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब इलेक्शन होता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, बैंक ऑडिट जाने वाला है, ये जाने वाला है, भैया क्या करके आते हो बैंक ऑडिट में? Anyway, yes, I'm not the right person to comment on that. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए आप बिल्कुल
काफी समय से आप बहुत सारी चीजों को देख रही हैं और बहुत ही अच्छे से आपने बात को रखा है और बहुत ही फ्रैंकली रखा है। द टाइम इज फॉर द इंट्रोस्पेक्ट, हमें अपने अंदर भी झांक के देखना पड़ेगा। और इसी वजह से इस बार 2022 में जो लोगों ने बैंक ऑडिट किया, आप देखिए कि अगर कहीं भी कुछ डाटा मिलेगा कि पिछले 2-3 सालों में जो एमओसी का परसेंटेज था, जो इस बार का परसेंटेज है, उसमें कितना फर्क है। वो इसी वजह से है कि सबको ये महसूस हो गया है कि हमें अपनी ड्यूटी को अपनी बहुत ईमानदारी से और बहुत ही कमिटमेंट के साथ निभाना पड़ेगा। और यही अगर 20-25 साल पहले हम लोग ठीक से रियलाइज कर लिए होते तो जी आज हम लोग बादशाह थे। जी हम बादशाह बिल्कुल थे और आज होते। जी 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 आज जो है वो नया बच्चा जो है उसको लगता है ये कोई बहुत इलीट प्रोफेशन नहीं रहेगा। बट I mean, besides this, I would say for the ladies, I feel this is the best profession. Because you are the boss of your own. So this is the best profession. Yes, that's why we are promoting our female members through this forum WoW, because they should come forward and take प्रैक्टिस का part. सबसे अच्छा मजा यही होता है कि आप जितने टाइम चाहो उतने टाइम करो भैया, बाकी बंद कर दो, अपनी फैमिली को भी टाइम दे लो, बच्चों को भी टाइम दे दो, उनको भी पाल लो और प्रैक्टिस भी कर लो, जो अपना करने का मन है वो कर लो। सो ये सब चीजें हैं। सो आई फाइंड इट कि दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर द फीमेल। बहुत अच्छा रहा आज। मुझे लगता है कि आपके रहने से काफी ओपिनियन बहुत सपोर्ट किया आपने। मुझे तो बहुत मजा आता है जब इन यंग फीमेल्स को देखती हूँ, क्योंकि मैं काफी अकेलापन महसूस करती थी जब मैं थी, तो कोई नहीं था आसपास। जी 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 जी। अब देखिए मैं ढूंढ के लेके आ रहा हूँ रीना जी, मैं ढूंढ के ला रहा हूँ। पता नहीं कितने ग्रुपों में मैंने लिखा है कि जो भी इंटरेस्टेड हो। मेरे पास 30-35 फीमेल मेंबर्स के नाम आ गए अभी, जबकि बहुत कम है वो जो इंटरेस्टेड है किसी न किसी रूप में पार्ट लेने के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर प्रोग्राम में कम से कम 3 से 4 फीमेल्स को। टैलेंट बहुत है। और मैं तो कहती हूँ जैसे शौर्या आगरा से थी, जैसे हमारी लखनऊ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी की अभी पिछले साल तो हम लोग ने आगरा में ही आरआरसी की थी। जी जी, हम कोशिश करते हैं कि आरआरसी में नंबर बढ़ाएं। जी जी 5-6 फीमेल्स हो जाते हैं हम, तो हम चाह रहे हैं कि 10 तक आए, कुछ थोड़ा नंबर बढ़े, क्योंकि मजा अकेले जाने में किसी को मजा नहीं आता। बिल्कुल। सो छवि जी आगे आप मूव करिए प्लीज। On that note, I'll request Tanvi Khandelwal for a vote of thanks. Thank you so much. Good evening, everyone. It has been such an honor to be the part of this wonderful event. On behalf of the CIRC, I would like to extend my grateful gratitude to the team who have a wonderful topic for the webinar. We have so much practical issues to be dealt on daily basis with the GST. I would like to thank our esteemed speaker, CA Shaurya Goyalji, for enlightening on the 5 years GST and the issues related thereto. She included topics such as cascading taxation, e-commerce business, ITC and reversal of tax, matters related to the arrest of chartered accountants, online services and valuation of land. Thank you so much, Shaurya ma'am. Thank you to the session chairperson, CA Reena ma'am, for conducting session smoothly. Thank you so much, CIRC team chairman, CA Atul Mehrotra sir, CA Vice Chairman Kishore Verdia ji, Secretary Lokesh Maheshwari ji, Treasurer CA Rajiv Gupta ji, Sikasa Chairman CA Anil Yadav ji, and Program Moderator CA Chavi Jain ji. Thank you so much. I would like to thank our technical team also. A wide round of applause and thanks to all the participants who have made the event memorable one. Finally, I would like to thank all of you to present here and making the time to be with us today and helping us make this event grand success. Thank you one and all. Over to you, ma'am. Thank you Tanvi, thank you. Thank you Reena ma'am, thank you Shaurya for such an enlightening and a lively discussion. 2 घंटे कहाँ निकले पता नहीं चला किसी को। एट लास्ट एक मेरा मन बहुत भारी है। एक बहुत दुखद घटना हुई है आज हमारे CIRC में, और मैं जरूर आप सबसे निवेदन करूंगा कि पहले मैं बता देता हूं, बरेली के एक विशाल गोयल जी थे जिनको कल रात में बहुत मैसिव हार्ट अटैक पड़ा। ही वाज जस्ट 44-45 years old
मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ और बरेली ब्रांच के चेयरमैन भी रहे हैं वो। और 21 मई को एक प्रोग्राम था ब्रांच में, तो मैं उनसे उस दिन भी मिला था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। ही वॉज वेरी सोशल वर्कर, वेरी चेयरफुल, वेरी सपोर्टिव फॉर द फैटर्निटी। एंड तो मेरा एक निवेदन है सभी लोगों से, जो मैं बार बार हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में करता हूँ, कि हम लोग इतने स्ट्रेस वाले प्रोफेशन में हैं। रीना मैम तो स्माइलिंग स्माइल्स के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, कोई टेंशन में नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल ब्रदर सिस्टर बहुत तनाव में रहते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जरूर अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। और अगर हम ऐसे प्रोफेशन में है, एज सेड बाय रीना मैम, कि अगर हम अपने, मेरा शरीर, मेरा दिमाग काम करेगा तो स्काई इज द लिमिट। मेरा जितना मन हो उतना हम काम करें, जितना मन करे अपने घर की देख रेख करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बट अपने शरीर का जरूर ध्यान रखिए। और थोड़ा सा केयरफुल रहना ही पड़ेगा, because nobody is caring for you. You are caring for all your clients or family and the society at large. Government for and also supporting our government for making their scheme successful. But who is caring for me, for you? So we have to care ourselves only. तो और बहुत दुखद घटना हुई है, काफी तकलीफ में पूरा हमारे बरेली और आसपास के लोग हैं। मैं भी काफी दुखी हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बार उनसे मिला था। तो मैं निवेदन करता हूँ कि एक अपने हम लोग 1 मिनट का मौन उनकी आत्मा की शांति के लिए रख के अपनी मीटिंग को क्लोज करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Thank you. Now we are closing the meeting. Thank you so much once Thank again you. for this.